Hello everyone, welcome to the classes, and today we are here to understand about a new topic, a new chapter, biotechnology, principles and processes. So before diving deep into this subject, diving deep into this arena, diving deep into this topic, first I would like to begin with a very beautiful quote which I have just now read, which says that diligent bees have no time for sorrow, which means that if you have consistency, if you maintain a kind of discipline in your work, you don't need to have a time for sorrow. It means you don't need to regret about your actions. It's sure that 100% you will get success. So this was the quote of the today. Now let's begin with the chapter biotechnology, principles and processes. So before understanding this chapter, let's get back to the natural sciences. Every kind of knowledge which we have right now discovered and which we have been using in our daily lives, be it physics, be it chemistry, or be it any of the natural science subject, every knowledge, it has to be utilized in such a way, it had been manipulated in such a way that every knowledge is being utilized for the making our life ease and comfortable. So this was actually, this was the need, or this was the desire of developing every natural sciences. Now नेचुरल साइंसेस का डेवलपमेंट तो ठीक था, ओके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब का यूज करके हमने क्या किया, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज की, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने बहुत सारी इंजीनियरिंग टूल्स डेवलप किए, एंड विच हैव consistently and diligently it has given us the results that today we have a very beautiful life, we enjoy, we are at ease, we are at comfort, we can do our work very easily. So now what was the desire to develop a subject called biotechnology? Actually, if we will see, biotechnology कोई एक अलग सा सब्जेक्ट तो है नहीं. Biotechnology it developed in 20th of century as the offshoot of the subject biology. Biology एक सब्जेक्ट ऑलरेडी था. 20th century में क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक निर्माण हुआ as a kind of offshoot. It was not a different subject, it was not a different discipline. So now we will be learning about biotech principles and processes. अब अगर इस टॉपिक का अगर हम हेडिंग देखते हैं, बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो सबसे पहले हम बायोटेक का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है क्या. तो सिंपली अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी it consists of two words, bio and technology. Now the word bio, इसका मीनिंग तो सबको ऑलरेडी पता होगा, which means life or which means living organisms. इसका मतलब क्या होता है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स. So technology means what? Techniques, applying different techniques. तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एज अ वर्ड इज इटसेल्फ डिफाइनिंग इट, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्निक्स. मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जब हम ढेर सारे या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, और यूज करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट की आवश्यकता होती है उस टाइप का रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं. तो अगर सिंपली हम बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन पे जाएं तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट डील्स विद द टेक्निक्स. देखा यहाँ पे क्या है? टेक्निक्स. इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ व्हाट? टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और द एंजाइम्स. या तो हम कंप्लीटली लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, और या तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन कर रहे हैं एंजाइम्स को. अब इस एंजाइम्स का हम क्या करते हैं? डील विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस which are useful to
ह्यूमंस। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन इसका? कि इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ व्हाट? टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, या तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया हुआ एंजाइम को हम यूज कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म किस लिए यूज करते हैं हम? टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेसेस। या तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो हम ऐसे प्रोसेसेस बनाते हैं, करते हैं जिसका यूजफुल किसके लिए है? यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम कहें कि बायोटेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में कोई ऐसे अचानक से एक सब्जेक्ट आया एंड यू नो इट सेड दैट ओ यूरेका, मैं एक नया सब्जेक्ट हूँ। कभी भी कोई भी चीज यू नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साइंस कि कोई भी चीज अपने आप निकल करके नहीं आती है। सिंपली एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द नेचर। साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको ऑब्जर्व किया कि नेचर में एक्चुअली चल क्या रहा है। ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंटेशन किया। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने कुछ डिजायर्ड, उनको कुछ उनके जो प्रोसेसेस थे उससे उनको वैल्यूज मिली, और उन वैल्यूज का यूज करके उन्होंने हमारी लाइफ को इजीली बनाया। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो कि इमर्ज हुआ अपने आप और हमने कुछ अलग सा किया। नो, इट वॉज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। अब अगर हम देखें कि डेली लाइफ का पार्ट कैसे था, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम क्लासिकल टाइम में देखें कि हम पीछे अगर जाएं कि एक्चुअली ऐसे हुआ क्या, सिंपली हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दही का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कर्ड में हम क्या करते हैं कि एक चम्मच कर्ड हम कहीं से लेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ मिल्क इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में होना ये भी एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन ये क्लासिकल है। मतलब क्या? ये पुराना हो चुका है। उसके बाद हम ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस। मतलब क्या कि माइक्रोब्स का हम सिंपली यूज कर रहे हैं। दीज आर ऑल द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को देखें कि सिंपली चीजें ऐसे स्टार्ट हुई और धीरे 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 हमने ऑब्जर्वेशन करते करते हमने चीजों को डेवलप किया। अब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरह अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हम स्टडी करते हैं उसमें? इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम IVF यूज करते हैं, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस लिए है? इन विट्रो, ये शब्द क्या कह रहा है? इन विट्रो, व्हाट डज इट मीन? मतलब विट्रो मीन्स व्हाट? विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कहाँ है? फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस इनसाइड दी बॉडी, बट हियर क्या हो रहा है कि इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है। So this technology is actually useful for those individuals who are unable to produce their own children. Another thing, if you will see, the biotechnology, it is useful for what? It is useful for developing DNA vaccines. अलग अलग प्रकार की वैक्सीन्स हमने डेवलप की हुई है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। आफ्टर दैट सिंथेसाइजिंग अ जीन, जीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमने क्या किया? हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। अब सिंथेसाइजिंग अ जीन मीन्स व्हाट? जीन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? सो जीन को सिंथेसाइज करना मतलब क्या? सबसे पहले ये समझना व्हाट इज एक्चुअली अ जीन। जीन एक्चुअली होता क्या है? जीन इट इज यू नो अ काइंड ऑफ, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो सिंथेसाइजिंग अ जीन, When we are synthesizing a gene, हम जीन को सिंथेसाइज कब कर रहे हैं? जब हमारी बॉडी एबल नहीं है, इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन जीन, तो हम क्या करते हैं? हम बाहर हम जीन को सिंथेसाइज करते हैं एंड देन वी इंट्रोड्यूस दैट जीन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इंसुलिन का देखें। इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन इंसुलिन, तो वो क्या करते हैं? इंसुलिन उनको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन एक्चुअली हुआ कैसे? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, वी विल लर्न फर्दर अबाउट दिस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बायोटेक्नोलॉजी। तो जीन का, ऐसी जीन को हम सिंथेसाइज करते हैं जो कि एक्चुअली इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाती है। उसके बाद करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, मतलब क्या है? इफ सपोज देयर इज अ जीन इनसाइड ह्यूमन बॉडी विच इज यू नो विच इज नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस।
अब सीक्वेंस करेक्ट नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, सीक्वेंस करेक्ट नहीं है तो डिफेक्शन होगा, डिफेक्शन होगा तो क्या होगा, और डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई फिनोटिपिकल इश्यूज इसमें डेवलप होंगे। तो इसीलिए करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन मीन्स व्हाट, जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको हम करेक्ट करके कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है, फिर हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में यूसेज कैसे है, ब्रेड बनाते हैं, देन कर्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद हमने मॉडर्न बायोटेक का एग्जांपल देखा, हमने आईवीएफ में यूज़ किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद हमने सिंथेसाइजिंग अ जीन, हमने जीन को सिंथेसाइज किया, डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन को हमने बनाया, करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन को भी हमने करेक्ट किया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक। अब एक अलग डेफिनेशन हम देखते हैं, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। According to European Federation of Biotechnology, integration of the natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analog for products and services. European Federation of Biotechnology, ये किस तरह से, how it defines biotechnology? It defines that what? It defines the integration of natural science. Natural science और organisms को क्या कर दिया? Integrate कर दिया, या तो फिर उसके सेल्स या तो फिर उसके पार्ट्स, किस लिए किया हमने? फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। सो दिस वाज रिगार्डिंग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है। ओके, नाउ हम ये देखेंगे, नाउ वी विल सी व्हाट आर द टू कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द टू वेरी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेराइल कंडीशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट? इंजीनियरिंग और चेंजिंग द सीक्वेंसेस, मैनिपुलेटिंग द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए मीन्स व्हाट? चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर, changes in what? Changes in the structure of genetic material. Changes in the structure of what? Changes in the structure of genetic material. डीएनए या आरएनए में हमने क्या किया? चेंजेस लाए, तो उसको हमने क्या कहा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये इसके बाद स्टेराइल कंडीशन। अब किसी पर्टिकुलर चीज को अगर हमें ग्रो करना है, सपोज देयर इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग ऑफ द मेडिसिन्स, व्हाट वी हैव टू डू इज वॉट एवर द कंडीशंस आर देयर वी हैव टू मेंटेन। लैबोरेटरी में जब हम किसी मेडिसिन को हम ग्रो करते हैं या किसी मेडिसिन को हम प्रोड्यूस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू मेंटेन दैट स्टेराइल कंडीशन। सो दिस वर द टू मेन कोर प्रिंसिपल्स which led to the birth of biotechnology. Now, biotechnology as a subject and a kind of, we will say that a kind of development took place in biotechnology when, I will say, two scientists, Herbert Boyer and Stanley Cohen, these two scientists were responsible for making the biotechnology as a kind of, a very well developed subject. How we will see it right now. When we talk about Herbert Boyer नाम के साइंटिस्ट जो थे, he was working on the restriction enzymes. ये restriction enzymes पर ये काम कर रहे थे. He was studying about the restriction enzymes, and while he was working on the restriction enzymes, he saw what he saw. He saw that these restriction enzymes actually they had the capability. They had the capability of what? They had the capability of cutting the DNA into different sizes. So Herbert Boyer, he studied and he saw that the restriction enzymes, they have the ability to cut the DNA sequences into different sizes. So उसके बाद Herbert Boyer and Stanley Cohen ने क्या किया? Stanley Cohen, he saw that the plasmids क्या होते हैं? Plasmids are actually, it is an extra chromosomal DNA which is present inside what? Which is present inside the bacteria. So Stanley Cohen, इन्होंने क्या किया? He studied the plasmids, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर है, he studied very properly with these plasmids, and he generated the way
he generated the way of removing out that plasmids. उस प्लास्मिड्स को बैक्टीरियल सेल से बाहर लाना and reinserting that plasmid into the bacterial cell. So he developed that method. So इन दोनों ने क्या किया, these two people they met somewhere, and after meeting they had a very good discussion about this कि oh you have done this restriction enzyme. अपने restriction enzyme पर उन्होंने क्या देखा, हर्बर्ट बॉय ने देखा कि restriction enzyme के पास कैपेबिलिटी है क्या करने के लिए, डीएनए का जो सीक्वेंसेस है उसको स्प्लाइसिंग करने के लिए, उसको कट करने के लिए. एंड स्टैनली कोहेन सेड ओके आई हैव सीन दैट दिस प्लास्मिड्स दे हैव द एबिलिटी, आई हैव सीन दैट प्लास्मिड्स हैव द एबिलिटी दैट वी कैन टेक इट आउट एंड वी कैन रीइंसर्ट इट. सो इन दोनों ने मिलकर के एंड दिस टू प्रोसेसेस दे वर कंबाइंड. एक ने डीएनए का स्प्लाइसिंग करना, दूसरा प्लास्मिड को बाहर निकालना एंड प्लास्मिड को रीइंसर्ट करना. इन दोनों को मिलाकर के एक नई टेक्नोलॉजी बनी, एक नया तरीका बना विच इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये चीजें थी. इट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. सो नाउ वी विल सी दैट व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवर द ट्रेडिशनल मेथड्स. हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग ही क्यों चूज की, ट्रेडिशनल मेथड्स भी तो हमारे पास थे. नाउ यू विल आस्क मी दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स वी हैव. Actually different traditional methods we have right now. Selecting हम farmers क्या करते हैं, selecting a kind of, इस variety के seed में क्या है, इसकी लंबाई अच्छी है, it is perfect, okay, size is okay, then everything is okay, we will take this seed and we will take another seed having a kind of microbial resistant and fungal resistant, ये सारी varieties इसमें है. Then what we do, we combine it and we produce a new and we produce a variety which is having all these characteristics. हम इस तरीके से कर सकते हैं. हम ब्रीडिंग करते हैं. what we do, actually traditional methods में ब्रीडिंग होती है. ब्रीडिंग ऑफ what, ब्रीडिंग ऑफ having two different seeds ले लिए, having desirable characters, उनका combination कर दिया and we produce it. इसी तरह एनिमल ब्रीडिंग की जाती है कि एनिमल ब्रीडिंग में what, कि some animal is having this characters and it is having this character. okay, what we will do, breed it and we will have that desired characters. ओके भाई, हमारे पास तो एक अच्छा खासा मेथड था. कौन सा मेथड था, हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है. वी कैन कंबाइन दिस टू थिंग्स. ओके, वी कैन कंबाइन दिस टू कैरेक्टर्स एंड दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास तो वो मिल गई चीजें जो हमें चाहिए थी. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स तो हमें मिलते हैं, वी गेट द डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक्चुअली, बट एक्चुअली डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ क्या आते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो भी तो आएंगे. व्हाई, बिकॉज वी हैव कंबाइंड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और टू डिफरेंट एनिमल्स और टू डिफरेंट प्लांट्स. वी डिड नॉट एलिमिनेट, हमने ये तो नहीं कहा कि ओके दिस आर द अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स, ये अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स उसमें नहीं आने चाहिए. नो, वी डिड नॉट से दैट. हमने क्या किया, हमने होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म का हमने ब्रीडिंग करवाई एंड वी गॉट ऑल दोस डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्लस अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो इसकी वजह से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप किया. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम केवल उन्हीं पार्ट को लेते हैं, उसी डीएनए के पार्ट को लेंगे, उसी सीक्वेंस को लेंगे जो सीक्वेंस, जो जीन क्या कर रहा है, उसी कैरेक्टर को कोड कर रहा है. तो क्यों ना हम, इसमें होता क्या है कि हम ऐसे सीक्वेंस को ही निकालते हैं डीएनए के, ऐसा ही जीन निकालते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में वो कोड कर रहा है. तो उसी सीक्वेंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. सो दिस वाज द रीजन एक्चुअली कि व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट और डेवलप्ड एज अ काइंड ऑफ मेथड. नाउ वी विल सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस एक्चुअली. तो हम एक्चुअली आज हम देखेंगे कि केवल हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करती है. डीप में वी विल डाइव डीप इनटू ऑल दिस थिंग लेटर ऑन, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इट. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन प्रोसेसेस. फर्स्ट थिंग इज formation of the recombinant DNA. Second one is cloning of the gene. Third one is transfer of that gene. So these are the 3 main processes. Okay, we will understand every process. genetic engineering की सारे process हम यहाँ पर एक simple से diagram से हम देखते हैं. Okay, suppose what we have to do,
हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो कि फॉरेन डीएनए में है और फिर उसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो व्हाट वी विल डू, सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग इट हैज सो मेनी प्रोसेसेस, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ व्हाट, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर्स or isolation of that desired gene, desired part of that DNA which we actually need. So we will see that there is a foreign DNA. We will isolate. What we will do? We will cut that part. This is the DNA, foreign DNA, जिसमें क्या है, इस foreign DNA के अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, अब ये पूरे DNA को तो हम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इस फॉरेन डीएनए को हम उसी, मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये वाला पार्ट ही चाहिए सिर्फ। क्यों भाई, यही पार्ट क्यों चाहिए, क्योंकि इस डीएनए में वही जीन है, दिस जीन्स आर एक्चुअली मेंट, दिस जीन्स आर एक्चुअली कोडिंग फॉर दैट कैरेक्टर, दिस जीन्स आर एक्चुअली कोडिंग फॉर दैट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच वी एक्चुअली वांट, जिस कैरेक्टर की हमें आवश्यकता है वही ये कोड कर रहा है। सो व्हाट वी विल डू, अब हमें क्या चाहिए कि ठीक है इस पार्ट को क्यों ना हम एलिमिनेट कर दें, हाउ वी विल एलिमिनेट, अब हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज को सेपरेट करना, व्हाट वी डू एक्चुअली, सीजर लेते हैं, कट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सीजर लेंगे और डीएनए को हम कट कर देंगे, बट दैट इज नॉट टू इजी। हमें करना क्या है, यहाँ पर भी सीजर लेकर आना है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर। कौन सा सीजर, सीजर का नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए हमने क्या यूज किया, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस डीएनए को कट करने के लिए हमने क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने डीएनए के पार्ट को कट कर दिया। अब हमें ये वाला पार्ट ही हमें चाहिए, बाकी ये वाले पार्ट का हम एलिमिनेट कर देंगे। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट कट इट आउट। तो सबसे पहला क्या था, आइसोलेशन। आइसोलेशन में हमने क्या किया, वॉट एवर द डिजायर्ड जीन और वॉट एवर द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द डीएनए, वी हैव रिमूव्ड इट आउट, वी हैव टेकन इट आउट। अब यहाँ पर हमने कट किया, फिर हमें क्या चाहिए, आइसोलेशन करने के बाद अब इसको हमें, वी हैव टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिजायर्ड कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज हमारे पास होंगी तभी हम इसको लार्ज स्केल पर हम यूज कर पाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस फॉरेन डीएनए पार्ट को, दिस डिजायरेबल कैरेक्टर को, डिजायरेबल पार्ट ऑफ दैट डीएनए, इसको हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसे वेक्टर में हम ट्रांसमिट कर देंगे जो क्या करेगा, इट विल हेल्प अस, इट विल गिव अस दैट प्रोडक्ट, इट विल मल्टीप्लाई दैट प्रोडक्ट एंड इट विल गिव अस बैक। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, फर्स्टली वी हैव जस्ट spliced, we have cut the DNA with the help of restriction into nucleus or restriction enzyme or molecular scissor. We have cut the part of the DNA. Now that part of DNA which is desired, we will insert it. What we will do, we will insert in what, we will insert in the vector. Vector, अब यहाँ पर vector का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर vector कौन है हमारा, प्लास्मिड। प्लास्मिड it is acting as a vector. अब प्लास्मिड क्या है ये समझने के लिए, प्लास्मिड एक्चुअली कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरिया के पास जो सेल है, इनका अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है। मीन्स व्हाट, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ओके, विथ जेनेटिक मटेरियल दे आल्सो हैव द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, which means that they have their own genetic material which is different, which is independent from what, which is independent from this extra chromosomal DNA. सो प्लास्मिड्स क्या है, दीज आर सर्कुलर इन नेचर, बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। प्लास्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, पहली बात बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कहाँ है, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये इंडिपेंडेंटली फ्लोट करते होते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या, कि जितने भी इसके जो इसका बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, वॉट एवर द जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया इज हैविंग, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। इट मीन्स वॉट, इट इज हैविंग दैट कैपेसिटी, इट कैन मल्टीप्लाई by its own, it does not need the help of its own genetic material. So plasmid क्या है, plasmid it is circular. Okay, mostly it is circular, double stranded DNA, circular double stranded DNA and extra chromosomal. Means what, it is extra, circular है, double stranded है, double stranded DNA है, extra chromosomal है, and very important character independent है. So it is circular. First thing, it is independent. Second thing, it is extra chromosomal,
and it freely floats into the cytoplasm of bacteria. तो हमने अभी now we have just talked about कि how this plasmid is having the ability to, what we will do now actually, we will take this part of the DNA and we will insert it. What we will do, we will insert into this section. तो इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस, बिफोर inserting this part into this vector of into this plasmid vector, what we will do actually, we have to cut this part. Why? Because this we will remove this part, then only what we will do, we will add this part. किसी फॉरेन DNA के पार्ट को ऐड करने के लिए हमें उतनी से पार्ट को हमें रिमूव करना होगा. So what we will do, we will cut it and we will cut the foreign DNA and we will cut the part of the plasmid with the help of the same restriction endonuclease or the same molecular seizure. Molecular seizure से हमने क्या किया? What we have done, we have cut the part of the foreign DNA, we have cut the part of the vector DNA, that is plasmid. So we have cut these two parts. यहाँ पे cut किया हमने, यहाँ पे cut किया. Now we have this part of the DNA and we have the space where we can actually integrate this part. So what we will do, simply we will take this part and we will ligate. What we will do, next process is ligate. Ligate कैसे करेंगे? Ligate means what? We will take this part of the DNA and we will stick to the part of this vector. So simply we will take this part and we will add this part to this plasmid. Okay. Now after, अब addition के लिए what we have to do, we have to ligate it. Ligate कैसे करेंगे? Ligase, there is a DNA ligase, there is an enzyme which is known as DNA ligase, which is helping in what? Which is helping in joining the foreign DNA to the plasmid vector. तो DNA ligase करके there is an enzyme which is actually helping to join the foreign DNA to the plasmid. So what we have done, हमने सबसे पहले what we have done, we have isolated what? Isolated the part of the foreign DNA which is actually having the desired characters. Isolation is first thing. Second thing is cutting out. Isolation कैसे करेंगे? कट ही करेंगे. So what we will do actually, we will cut it with the help of what? Cutting it with the help of restriction endonuclease और restriction enzyme जिसको कहते हैं. Isolate किया with the help of restriction enzyme. Then we have insertion of that foreign DNA into the vector DNA. Then what we will do? After insertion, for inserting that DNA, we have used that enzyme DNA ligase to join the foreign DNA to the plasmid. After ligating this foreign DNA to this vector DNA, we will take, what we will do, we will actually transfer this vector DNA to the host cell. अब यहाँ पर हमारा होस्ट सेल क्या है? यहाँ पे हमारा होस्ट सेल है ई कोलाई बैक्टीरिया. ई कोलाई बैक्टीरिया है. इस होस्ट सेल में हमने इस वेक्टर को, प्लास्मिड को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया. नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. ट्रांसफर ऑफ दिस recombinant DNA. We have combined two DNAs, DNA of this foreign and DNA of this vector plasmid. After the transfer, what we will do? Transfer of the recombinant DNA molecule. This is recombinant DNA. We will transfer it to what? We will transfer it to the bacteria, E. coli bacteria. And what will happen? After transferring, it is having the ability, we have seen right now that it is having the ability to multiply independently. So what it will happen, whenever the bacteria will, reproduce, whenever the bacteria will multiply, whenever the bacteria will divide, with that division, this desired characters, this plasmid will also multiply. It will also divide and we will be having the multiple copies of the desired characters. तो हमने क्या किया? हमने foreign DNA में से क्या किया? Foreign DNA में से हमने वो desired characters जो थे हमने वो निकाले, उसको हमने plasmid vector में हमने उसको insert किया. After insertion हमने क्या किया? उसको ligate किया. Ligate करने के बाद हमने transfer कर दिया. किस में transfer कर दिया? ट्रांसफर कर दिया हमने बैक्टीरियल सेल में. किस लिए ट्रांसफर किया? मल्टीप्लिकेशन के लिए. उसके बाद सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो थे वो हमें ढेर सारे पार्ट में हमें मिल गए. एंड आफ्टर गेटिंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, what we simply do, we harvest that and we just use it. So this was all about the recombinant DNA technology or the genetic engineering. So in genetic engineering we have seen that
there is a process of recombinant DNA technology, recombinant DNA, cloning of the gene with the help of the vector, and the transfer of the gene. Transfer of the gene to what? Transfer of the gene to the host. So this was all about the genetic engineering. This is just an overview. अगर हमें, if you want to learn more about this topic, we have so many things actually. We have to actually dive deep into each and everything. Like we have to learn about what? We have to learn about restriction enzyme. कि actually restriction enzyme है क्या? So now we will learn about what is actually restriction enzyme. So now we will see कि what is actually restriction enzyme. हमें याद, now we should remember that restriction enzyme का हमने use कहाँ पे किया? Restriction enzyme को it is having another name, molecular seizure. It is also known as molecular seizure. So restriction enzyme is having the ability to cut the foreign DNA and divide and cutting the foreign DNA and taking out the desired characteristics. So it is simply acting as a seizure. So before understanding that how it cut, we should know that what actually this restriction enzyme means. Restriction enzyme का meaning क्या है? So restriction enzyme, actually this is an enzyme. This is nothing. Enzyme का काम क्या होता है? So restriction enzyme, it is actually present in the bacteria. So this restriction enzyme, ये बैक्टीरिया में कर क्या रहा है? बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. सो इट इज एक्टिंग एज अ रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज हैविंग टू जॉब. बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दो काम है. पहला काम क्या होता है इनका? रेस्ट्रिक्ट, टू रेस्ट्रिक्ट करना है. क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला काम क्या है? रेस्ट्रिक्ट करना है. रेस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट? Restricting the propagation of what? Foreign DNA. Means what? As we have the immunity system, human के पास क्या है? We have immunity system. जब भी कोई foreign DNA हम पे अटैक करता है, foreign disease या foreign viral infection या कुछ भी अटैक करता है, what simply our immune system do? वो respond करता है and try to fight with that disease. In the same way, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? इट रेस्ट्रिक्ट्स द प्रोपगेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए. मीन्स व्हाट? इफ सपोज अ फॉरेन डीएनए इट अटैक्स ऑन द बैक्टीरियल सेल एंड इट ट्राइज टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल, व्हाट इट विल डू? इट विल रेस्ट्रिक्ट. सो द फर्स्ट जॉब ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज टू रेस्ट्रिक्ट. Restricting where? Restricting inside the bacterial cell. And second part is having job of methylation. Means what? Methylation means what? Addition of methyl group. Addition of methyl group. Addition of methyl group to what? Addition of methyl group to its own DNA. Its own DNA base pairs. So रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हाट इट विल डू? पहले ये क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्ट करेगा कि कोई भी अगर फॉरेन डीएनए अटैक करता है तो उसका प्रोपेगेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा. एंड सेकंड जॉब मिथाइलेशन, वो क्या करेगा कि अपना जो डीएनए है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट जेनेटिक मटेरियल इट विल ऐड मिथिल टू इट्स ओन डीएनए बेस पेयर्स. ये क्या करेगा? सबसे पहले तो जो भी फॉरेन डीएनए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? ये उसका मल्टीप्लिकेशन को रुकेगा. एंड नेक्स्ट थिंग इट विल डू मिथाइलेशन. मतलब ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो डीएनए है, उसमें ये मिथिल ग्रुप को ऐड कर लेगा. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एडिशन ऑफ दिस मिथिल ग्रुप? व्हेन इट विल ऐड द मिथिल ग्रुप टू इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इट विल help its own genetic material from digestion of what? The foreign DNA should not digest its own genetic material. So after methylation, after adding methyl group to its own genetic material, it will protect its genetic material from the digestion. foreign जो genetic material है, foreign जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, वो क्या करे? वो मेरे जेनेटिक मटेरियल को ना खा जाए, इसकी वजह से वो क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को सेव कर लेता है. कैसे सेव करता है? वो अपने जेनेटिक मटेरियल में मिथिल ग्रुप को ऐड कर लेता है. इस तरीके से
सो हमने ये देखा कि एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये आया कहाँ से. तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम देखा कि ओ एक्चुअली बैक्टीरिया में इस तरह से काम कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, फॉरेन डीएनए को वो डाइजेस्ट कर ले रहा है. तो हमें ये पता चला कि इसके पास एबिलिटी है, दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एक्चुअली हैविंग द एबिलिटी टू व्हाट, टू डाइजेस्ट what, to digest the genetic material. So we have used this ability of this restriction enzyme to cut the pieces of the DNA, to cut the DNA into different pieces with the help of what, restriction enzyme. तो restriction enzyme की ये कहानी हमने सुनी. एक्चुअली restriction enzyme एक्चुअली आया कहाँ से, क्या है कि simply what we do, we just start learning, okay, restriction enzyme, it is a molecular season. We have to calm down and we have to understand कि restriction enzyme actually आया कहाँ से. This restriction enzyme was part of what, DNA, it was part of bacteria. इस restriction enzyme को हर्बर्ट बॉयर ने देखा कि oh, this restriction enzyme is actually working in this way. So we have harvested that enzyme and we have used it as a kind of scissor to cut what, to cut the DNA into pieces. So this was the story about the restriction enzyme. अब हम ये देखेंगे कि which was the first restriction enzyme which was discovered. It was Hind2. So there are so many restriction enzymes, Hind2, and if you will see another example of the restriction enzyme, we have EcoRI. अब कहेंगे कि how we can name this restriction enzymes. किसी भी molecular seizure का नाम रखने के लिए, नामकरण कहते हैं ना कि किसी का नामकरण. So नामकरण कैसे किया इसका? सबसे पहले कोई भी restriction enzyme जो होगा या restriction into nucleus होगा, उसका जो whatever its first letter is, it is actually a genus. So E stands for genus. Genus means, here E means Escherichia, and CO stands for species, which is coli. And R actually what is R? R here is strain. So this bacteria it has been obtained from which strain? So R stands for strain. Strain of what? RY13. This is the name of this strain, R. So we have just taken the word letter R. I, actually it is not I, it is a Roman numeral. So this was in this molecular seizure, this letter, this Roman numeral 1, it says that this was the first molecular seizure. This was the first molecular seizure which was obtained from this particular strain, that is RY13. So we have seen that कि किस तरीके से restriction into nucleus को name दिया जाता है, how the restriction enzymes are actually named or the molecular seizures are actually named. So if you will revise it, first thing is genus, first letter, second two letters are species, and the third part is strain, and the fourth part is actually, and the fourth part it actually designates numeral. So this is how we actually name the restriction endonuclease or the restriction enzymes, जिसे हम molecular seizure भी कहते हैं. So this was all about the restriction enzyme, and there are so many restriction enzymes like this. And we have another. I will give you another example, that is BAMHI. B stands for Bacillus. A stands for species name Amylofaciens, and H, it is the name of the strain. Okay, so this was another restriction endonuclease. So this was all about the restriction enzyme. After restriction enzyme, what we have used? Vector. In vector का काम क्या है? Vector it just what it do? It help in transferring the foreign DNA into the desired cell, transformation into the desired cell, and it leads to what? It leads to the multiplication of that desired characteristics. So this was all about, we have learnt about biotechnology.
And simply we have seen what is biotechnology, we have seen the definition, we have seen its classical uses, we have seen its modern uses, and we have seen that how genetic engineering actually works. We have seen in genetic engineering the three main processes: recombinant DNA technology, recombinant DNA, cloning vector, and then we have seen what? Cloning vector, and then transferring that particular gene into the host cell. So this was all about today, the lecture. We have learned about the biotech principle.